Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic for today is spleen. I'm Dr. Zulfikar Salim, Associate Professor in Surgery. The spleen is a major lymphoid and blood filtration organ, as you know. We will talk. The learning objectives are to understand the function of the spleen, common pathologies, principles and potential complications of splenectomy. Splenectomy is an important surgery for spleen. Therefore, we want to know its indications, its pre-op preparation, and its complications. That is important for a spleen. The potential advantages of laparoscopic splenectomy. So the laparoscopic splenectomy is definitely superior if possible, but in emergency situations, you have to do the open splenectomy. Then we will know the benefits of splenic conservation. We want to conserve the spleen in many cases. The importance of prophylaxis. Importance of prophylaxis against infection following splenectomy. ये साउंड्स और आ रही हैं जरा पहले म्यूट कर दें बाकी लोगों के. हेलो नवीद ये माइक बाकी के म्यूट कर दें. As regards the anatomy, the weight of normal adult spleen ranges from 75 to 250 grams. Size is 10 into 7 into 3 centimeters, and it lies in the left hypochondrium between gastric fundus, stomach और डायफ्राम के नीचे और स्टमक के नीचे स्प्लीन लाई करती है, और its long axis is along the 10th rib. The hilum sits in the angle between the stomach and the kidney and is in contact with tail of pancreas. That is important. The hilum is in contact with the tail of the pancreas because in any splenic surgery, the pancreas may be injured, or in any pancreatic surgery, the spleen may be injured. The concave visceral surface lies in contact with these structures, and the lower pole extends no further than mid-axillary line. Then there is a notch on the infralateral border. There is a notch on the infralateral border, and this may be palpated when the spleen is enlarged. So, on abdominal examination, you can identify spleen with the splenic notch, the presence of splenic notch in the infralateral border of the spleen. Regarding the blood supply, the splenic artery is tortuous and arises from the celiac axis, usually from a common stem with a hepatic artery, and then it runs along the upper border of the body and tail of the pancreas. Runs along the upper border of the body and tail of the pancreas, to which it gives small branches. The other branches are short gastric and left gastroepiphyseal branches, which pass between the layers of the gastrosplenic ligament. The main splenic
artery generally divides into superior and inferior branches, which in turn subdivide into several segmental branches. As regards the splenic vein, it is formed from several tributaries that drain the hilum. The vein runs behind the pancreas, receiving several small tributaries from the pancreas before joining the superior mesenteric vein at the neck of the pancreas to form the portal vein. This splenic vein, when it meets the superior mesenteric vein at the neck of the pancreas, it forms the portal vein. The splenic pulp is invested by an external serous and internal fibroelastic cord, which is reflected inward at the hilum. The lymphatic drainage comprises efferent vessels. Afferent vessels इसमें नहीं होती, इसमें all are the efferent vessels spleen में in the white pulp that run with the arterioles and emerge from nodes at the hilum. Efferent vessels हैं spleen में, afferent vessels नहीं है, और हाइलम से जैसे ये निकलती हैं, these nodes and lymphatics drain via retropancreatic nodes to the celiac nodes. Retropancreatic pancreas के पीछे जो nodes हैं उनके साथ मिलती हैं और फिर वहाँ से आके celiac nodes, lymph nodes में ये lymphatics drain होते हैं. इसके अलावा कुछ नर्व्स हैं, सिंपैथिक नर्व्स फाइबर्स हैं, which run from the celiac plexus and innervate splenic arterial branches. ये पिक्चर है, the same splenic artery arising from the celiac axis, entering the hilum. The same way the vein, when it joins with the mesenteric vein, it forms the portal vein. Location of the spleen mostly जो है in contact with the diaphragm. Left on left side is in contact with the diaphragm, behind and under the surface of the stomach, and in close relationship with the splenic flexure of colon. So this is the location of the spleen. As regards embryology, it develops from the mesenchymal cells in the dorsal mesogastrium. Develops from the mesenchymal cells in the dorsal mesogastrium during the 5th week of gestation. Regarding the anomalies, accessory spleen is the commonest anomaly, and 80% of the accessory spleen is in the hilum and vascular pedicle. Almost all is covered by the peritoneum except in the hilum area. Is covered with the peritoneum except in the hilum area. Then there are 4 important ligaments which hold the spleen at its position. The ligament attached to the stomach is the gastrosplenic ligament. Then ligament which attaches it to the diaphragm is the splenophrenic ligament. Then the ligament which attaches it to the kidneys is the splenorenal ligament, and then the splenocholic ligament which attaches it to the colon. So whenever you need to
remove spleen, you have to divide all these ligaments, and you have to ligate all the vessels in these ligaments. Regarding functional anatomy, blood from a central tubercular artery, these are the central tubercular arteries, passes through the white pulp. This is white pulp, and into the from this white pulp, blood enters into this surrounding red pulp, and from this red pulp, it enters into the venous sinusoids. There are small holes, fenestrations in these venous sinuses, uh, which only allow the healthy cells to pass through them, और जो abnormal RBCs होते हैं वो वहीं पे phagocytized हो जाते हैं, phagocytes होते हैं, they don't, those spores don't let the abnormal cells to pass through the sinuses, और वहाँ पे phagocytes होते हैं जो उसको engulf कर लेते हैं. So this is the functional anatomy. White pulp है, red pulp है, और ये venous sinuses हैं that drain into the trabecular vein, और वहाँ से आगे फिर splenic vein. In this picture you can see the small pores in the sinuses from which these RBCs are passing. So only the normal shaped RBCs can pass through these holes, and the abnormal cells would be stuck over there and taken up by the phagocytes. इसके अलावा जो है हम देखते हैं रेड पल्प में क्या होता है. 75% is the red pulp and remaining is the white pulp. And the red pulp is in large number of venous sinuses हैं इसमें, जो आगे स्प्लीनिक वेन में ड्रेन करते हैं, और ये साइनसेस जो हैं are surrounded and separated by reticulum where the macrophages lie, and serves as a dynamic filtration system where macrophages remove the microorganisms, cellular debris, antigens, and antibody complexes. And तो आपके एबनॉर्मल रेड सेल है, एरिथ्रोसाइट्स. वाइट पल्प में क्या होता है, पर्टिकुलर लिम्फेटिक शीट्स हैं, उन शीट्स में क्या है, टी लिम्फोसाइट्स एंड इंटरमिटेंट एग्रीगेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स और लिम्फाइड फॉलिकल्स. ये स्ट्रक्चर है वाइट सेल्स का. और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो और बी लिम्फोसाइट्स ये फॉरेन मटेरियल्स और बैक्टीरिया और जो उनको काउंटर करने के लिए immune cells are always there in the spleen. So इसमें भी है आपको वाइट पल्प, रेड पल्प नज़र आ रहा है हिस्टोलॉजी में. Regarding the functions, although the spleen was previously thought to be dispensable, पहले ये समझा जाता था कि स्प्लीन कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसको निकाल भी दें तो बंदा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अपेंडिक्स निकाल देते हैं आप, कहते हैं कोई मसला नहीं. लेकिन increasing knowledge of its function has led to a conservative approach in the management of conditions involving the spleen. अभी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा है तो अभी पता चला है कि इसके काफ़ी सारे रोल हैं और विच आर वेरी इम्पोर्टेंट. वो हम देखते हैं कि क्या क्या रोल हैं. और it is now recognized that an incidental splenectomy during the course of another operation
operative procedure increases the risk of complications and death. इसमें जो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ब्लड की और इन्फेक्शंस की ये पेशेंट्स में आ जाती हैं, जिससे डेथ रेट भी बढ़ जाता है. The surgeon should therefore normally try to preserve the spleen to maintain the following functions. कौन कौन से फंक्शन हैं? एक इम्यून फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका स्प्लीन का, और इसके बाद फिर फिल्टर का फंक्शन है, फिटिंग एक इसका प्रोसेस है, रेजरवायर, साइटोपोइसिस, ये हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं. इम्यून फंक्शन में क्या है? द स्प्लीन कंटेन्स 66.5% and 10 to 15% of the body's total T and B lymphocyte population respectively. 66% जो है वो T lymphocytes हैं और 10 to 15% जो हैं वो B lymphocytes बॉडी के सारे जो है ना, उसमें कितनी परसेंटेज जो है वो स्प्लीन में मौजूद होती है. And it processes foreign antigens. एंटीजेंस को प्रोसेस करते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं स्प्लीन में, और फिर जो है फैगोसाइट्स जो हैं वो आते हैं और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको और बैक्टीरिया वगैरह को एनगल्फ करते हैं. इसके अलावा फिर फिल्टर फंक्शन क्या है इसका? मैक्रोफेजेस इन दी रेटिकुलम कैप्चर सेलुलर एंड नॉन सेलुलर मटेरियल from the blood and plasma. This will include the removal of defective platelet and red blood cells. अगर कोई immature RBCs हैं, abnormal RBCs हैं, abnormal platelets हैं, तो उनको engulf करते हैं macrophages in the spleen. This process takes place in the sinuses, जहाँ पे वो arterial blood venous में साइनसेस में एंटर होता है, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है. एंड स्प्लीनिक पार्ट्स बाय द एक्शन ऑफ एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस, जो वहाँ पे एंडोथेलियम के होता है साइनसेस में, उन एंडोथेलियल थैलियम में मैक्रोफेजेस होते हैं, वो इन एबनॉर्मल सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं. और आरबीसी से जो उनको आयरन मिलता है, which is removed from the degraded hemoglobin during the red cell breakdown, is returned back to the plasma, जिससे आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं होती. Removed non-cellular material may include bacteria and in particular pneumococci, जो encapsulated bacteria हैं, pneumococci especially जो है, immunity against the pneumococci is very important due to spleen. अगर स्प्लीन ना हो तो न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. What is the pitting? Particulate inclusions from dead cells are removed. Pitting is the process by which the particulate inclusions from the red cells are removed and the repaired cells are returned to the circulation. ये कौन सी रेड सेल्स इंक्लूजन बॉडीज हैं? These are Howell Jolly and Hinz bodies, which represent nuclear remnants and precipitated hemoglobin or globin subunits respectively. तो ये इसका फिटिंग फंक्शन है. रेजरवायर फंक्शन का है लोअर एनिमल्स में, तो इट एक्ट्स एज ए रेजरवायर ऑफ ब्लड, लेकिन ह्यूमन में बहुत ज़्यादा रेजरवायर ऑफ ब्लड के तौर पे तो स्प्लीन नहीं होती, लेकिन even then the 8% of red cell mass is present in the spleen. लेकिन ये जो है 8% जो है, in enlarged spleen this may contain even larger proportion of blood. ये तो नॉर्मल में है ना, 8% of the RBCs are present in the spleen, लेकिन अगर स्प्लीन इज एनलार्ज्ड
तो वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ आरबीसीज को reservoir के तौर पे spleen can have, which may cause the anemia and other complications. साइटोपोइसिस एक इसका फंक्शन है. From the 4th month of intrauterine life, some degree of hemopoiesis occurs in the fetal spleen. जैसे बोन मैरो वगैरह में है, ऐसे ही hemopoiesis जो है स्प्लीन में भी होती है in the 4th month of intrauterine life. इसके अलावा फिर stimulation of white pulp may occur following antigenic challenge, resulting in the proliferation of T and B cells and macrophages. जब कोई एंटीजन आता है ब्लड में, abnormal molecules which are not required, या बैक्टीरिया के कुछ वॉल्स हैं which act as antigen, तो stimulation of the white pulp takes place, और उससे क्या होता है, proliferation of T and B lymphocytes or proliferation of the macrophages. This may also occur in myeloproliferative disorders. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है. कुछ डिजीजेज हैं जैसे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कोई इमेच्योर और एबनॉर्मल आरबीसीज हैं या दूसरे डब्ल्यूबीसीज हैं, वो प्लेटलेट्स हैं, वो आपके सर्कुलेशन में आते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी फिर ये जो है स्टिमुलेशन ऑफ these cells T and B lymphocytes takes place, which results in anemia and other disorders like thalassemia and chronic hemolytic anemias. ये एक ड्रॉबैक है भी है कि स्प्लीन की वजह से उसमें फिर आपको स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है समटाइम्स, अगर एनीमिया कहीं किसी वजह से भी कंट्रोल नहीं हो रहा. Now, regarding the investigations, first we see the radiological imaging. Plain radiograph is rarely used, लेकिन sometimes अगर आप plain radiograph करते हैं तो incidental finding है कि आपको calcification of the splenic artery मिल जाए. बाज़ का may arise the possible diagnosis of splenic artery aneurysm. Splenic artery का aneurysm अगर हो और उसमें कुछ calcification of the wall of the splenic artery हो, तो आपने एक्सेस तो किसी और वजह से किया लेकिन आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आ जाती है. इसके अलावा बेनाइन सिस्ट और हाइड्रेटेड सिस्ट का भी समटाइम्स क्लू मिल जाता है, और मल्टीपल एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन में सजेस्ट स्प्लेनिक ट्यूबरकुलोसिस. अगर आपको छोटे मिलियरी कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है इन द स्प्लीन. इसी तरह अल्ट्रासाउंड है, कैन डिटरमिन द साइज एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्प्लीन. अल्ट्रासाउंड में कुछ एक्सेस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप साइज़ भी मेजर कर सकते हैं कि कितना साइज़ है, कंसिस्टेंसी किस तरह की है वो भी देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, और कुछ सिस्टस में है कि नहीं है वो भी देख सकते हैं. अल्ट्रासाउंड जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन CT scan, computerized tomography with contrast enhancement is more commonly undertaken. ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपको CT with contrast enhancement वो से आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और मोस्टली फिर इस स्प्लीन के इस तरह के मसाइल में आप CT स्कैन ही करवाना चाहते हैं. इसमें स्प्लेनिक पैथोलॉजी और अदर इंट्राअब्डोमिनल पैथोलॉजी वो भी आपको नज़र आ जाती है. इसके अलावा सिमिलरली MRI भी इज़ हेल्पफुल, सिमिलरली यूजफुल. इसके अलावा रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग है, समटाइम्स यूज होती है
The use of technetium 99 labeled colloid is normally restricted to determining whether the spleen is a significant site of destruction of red blood cells. अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आरबीसी क्यों कहाँ डैमेज हो रहे हैं, तो फिर आपको समटाइम टेक्नीशियन स्कैनिंग करते हैं कि क्या स्प्लीन में तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, टू सी दैट। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन में अगर आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अब देखना पड़ता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉब्लम क्या है, उसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ हैं। जैसे हिमोलिटिक एनीमियाज में आप ब्लड काउंट और आरबीसी मॉर्फोलॉजी और पेरिफेरल पिक्चर ऑफ द ब्लड वो आप देखना चाहेंगे। तो हिमोलिटिक एनीमियाज में वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा रेटिकुलोसाइट काउंट को। इसी तरह हेमोलाइसिस की टेस्ट करके देखेंगे। तो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेशली हिमोलिटिक एनीमिया में आपको करनी पड़ती है। अगर स्प्लीनोमेगैली है, स्प्लीन एंजार्ज है और उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन भी है, तो फिर आप लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेंगे, एंडोस्कोपी कर लेंगे, समय की कोई गैस्ट्रिक वेरिसेस और जो आपको ओसोफेजियल वेरिसेस ड्यू टू दिस पोर्टल हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। अगर स्प्लीनोमेगाली इज एसोसिएटेड विद सम लिम्फेडेनोपैथी, अगर कुछ लिम्फ नोड भी इधर उधर इलाज है और साथ स्प्लीन भी इलाज है, तो फिर आपको लिम्फ नोड बायोप्सी भी समटाइम्स हेल्पफुल होती है टू रीच द डायग्नोसिस। अगर पर्परा है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, तो उसमें आप प्लेटलेट काउंट देखना चाहेंगे और इसके अलावा बोन मैरो को एस्पिरेट करके उसमें देखना चाहेंगे कि जो प्लेटलेट्स की मेचुरेशन कैसी है, अमाउंट कैसा, नंबर कैसा है, और टू एक्सक्लूड द माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। तो रेडियोलॉजी में जैसे अभी बात हो गई है, प्लेन रेडियोग्राफ में कैल्सिफिकेशन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी आपको नज़र आ सकती है, अल्ट्रासाउंड साइज वगैरह कंसिस्टेंसी वगैरह बताएगा। सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो कुछ आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। और रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग जो है दैट टेल्स यू समटाइम्स द कॉज ऑफ द आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं स्प्लेनिक रप्चर। ये एक कंडीशन है स्प्लेनिक रप्चर। स्प्लीन मैनी टाइम्स रप्चर कर जाती है और उसकी कॉजेस क्या हैं। Splenic rupture should be considered in any case of blunt abdominal trauma. ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा जब भी है, सीवियर किस्म का एब्डोमेन का ब्लंट ट्रॉमा है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि maybe spleen is ruptured. Okay? Particularly when the injury occurs to the left upper quadrant of the abdomen. खास तौर पे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में अगर इंजरी है तो स्प्लीन के रप्चर के को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं, जैसे स्टोमक की सर्जरी कर रहे हैं, कोलोन की लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं सर्जरी स्प्लेनिक फ्लेक्सर के, और या आप किडनी को कर रहे हैं, पैंक्रियास की सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें याट्रोजेनिक इंजरी टू दी स्प्लीन remains a frequent complication of any surgical procedure, particularly those in the left upper quadrant when adhesions are present, especially जो है जहाँ पे एडहियंस ज़्यादा हो, प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है और उसकी वजह से एडहियंस बने हुए हैं, वहाँ पे आपको डाइसेक्शन डिफ़िकल्ट होती है और उसमें चांसेस हैं कि आप दूसरी सर्जरी कोई करते स्प्लीन को इंजर कर दें, स्प्लीन को रप्चर कर दें, उसकी वास्कुलैरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो चांसेस हैं। Malarial spleen is an important entity
और बिकॉज इन मलेरिया स्प्लीन इज enlarged, so rupture of malarial spleen is common in tropical countries. Rupture of a spleen enlarged due to malaria is not uncommon. Uh, Delayed presentation following a trivial injury, छोटा सा भी इंजरी हुई है तो उसमें पता चलता है कि स्प्लीन रप्चर हो गई है because it was enlarged. In such patients, radiological embolization may be performed if available, and splenectomy should be considered before a perisplenic hematoma rupture. तो उसमें फिर जो है आपको समटाइम्स ये देखना पड़ता है कि यार अगर इस स्प्लीन को छोड़ दें तो ये ना अचानक ये इसका हेमाटोमा जो है वो पेरिटोनियम में रप्चर करे और लाइफ एंडेंजर हो जाए, तो you have to do splenectomy in such cases. Complication that is associated with worse prognosis. अगर रप्चर हो जाए मलेरियल स्प्लीन तो उसमें फिर सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इतनी बड़ी स्प्लीन है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है, मैसिव है, और उसमें आप जाके कैसे सर्जरी करेंगे। सर्जरी इन सच पेशेंट इज चैलेंजिंग एंड अर्ली लाइगेशन ऑफ द स्प्लीनिक वेसल्स। उसमें ये कहते हैं कि अगर इस तरह के कोई मसला है तो फिर आप उसमें लिगामेंट्स वगैरह को डिवाइड करने से पहले जो है ना स्प्लीनिक वेसल्स को सबसे पहले लाइगेट करें along the spear board of the pancreatic body should be considered before disturbing the hematoma. hematoma को छेड़ने से पहले आप वेसल्स को आप कंट्रोल कर लें। ये ना हो कि hematoma को आप टच करें और वहाँ से इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो कि आप कंट्रोल ना कर सकें। तो ये है मलेरियल स्प्लीन। प्रेजेंटेशन कैसे होती है रप्चर स्प्लीन की? पेशेंट इसमें होता है कि रैपिडली हाइपोटेंशन शॉक की तरफ जा रहा होता है, सिम्टम्स रैपिडली फ्रॉम मैसिव हेमरेज, हेमरेज बहुत ज़्यादा होता है, तो इनिशियल शॉक है। उसके बाद रिकवरी एंड साइन ऑफ लेट ब्लीडिंग, और थोड़ा सा बॉडी के रिजर्व्स आते हैं, टेम्परेरीली रिकवरी होती है, लेकिन उसमें अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो इट इज़ लाइफ एंडेंजरिंग। और फिर डिलेड ब्लीडिंग भी होती है। और मैनेजमेंट क्या है रप्चर्ड स्प्लीन में? अगर कोई ट्रॉमेटिक है, हेल्दी स्प्लीन है, तो उसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन ये है कि यार कोशिश करें इसको कंजर्व द स्प्लीन, स्प्लीन को बचाएं, बिकॉज इसके बहुत सारे फंक्शन हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी के तौर पे, और इसके अलावा जो है फिल्ट्रेशन है, और इसके तो उसके लिए आप चाहेंगे कि इसको अगर पॉसिबल हो तो बचाएं। लेकिन जहाँ पे लाइफ एंडेंजरिंग है तो वहाँ पे फिर आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। और अगर जो है इसमें ये भी है कि अगर आप देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कोई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को बहुत हाइपरटेंशन नहीं है, स्टेबल पेशेंट है, और आपने एमआरआई भी करा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया, कंट्रास्ट एनहांस, तो आप देखते हैं कि कोई इतना ख़तरा नहीं है, तो आप उसको सर्जरी के बगैर कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट अनस्टेबल, तो उसमें आपको लेप्रोटमी करनी पड़ती है, और लेप्रोटमी करके फिर आप स्प्लीनोरेफी, एक प्रोसीजर है, एक स्प्लीनेक्टमी है, दूसरा प्रोसीजर है स्प्लीनोरेफी। स्प्लीनोरेफी आगे हम देखेंगे कि कैसे करते हैं कि स्प्लीन को आप जो है रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और या फिर आप करते हैं कि कोई इसका कोई सेगमेंट जो ज़्यादा डैमेज है उसमें पार्शल सेगमेंटल डिसेक्शन कर दें, बाकी स्प्लीन को ना छेड़ें। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द इंजरी, तो उसमें आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती
अब स्प्लीनिक enlargement एक एंट्री है, मैनी टाइम्स स्प्लीन enlarge आपको नज़र आती है, तो उसमें मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। वो हम देखते हैं कि स्प्लीनिक enlargement के कॉजेज क्या क्या होती हैं। इन्फेक्टिव कॉजेज हो सकती हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन एंटिटी है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्प्लीन, जिसमें इन्फेक्शन है और स्प्लीन enlarge हो जाती है। इसके अलावा फिर स्प्लीन में कोई एब्सेस बन गई तो उससे भी स्प्लीन enlarge हो सकती है। शिस्टोसोमियासिस, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, उसमें भी स्प्लीन enlarge के चांसेस है। हाइड्रेटेड सिस्ट स्प्लीन में, उस पर स्प्लीन enlarge हो जाएगी। और फिर मलेरिया इटसेल्फ जो हमने जैसे देखा है, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगाली उसको कहते हैं, मलेरिया की वजह से, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है, तो उसमें भी स्प्लीन enlarge होती है। इसके अलावा कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, उसमें भी स्प्लीन enlarge के चांसेस हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जो है हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है, उसमें भी स्प्लीन के enlarge के चांसेस हैं। थैलेसीमिया है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज जो हैं उनमें भी स्प्लीन enlarge हो जाती है। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स में सेगमेंटल पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट एंड मे कॉज स्प्लीनोमेगाली। इसके अलावा फिर ट्यूमर्स हैं जो प्लास्टिक, जो प्राइमरी सार्कोमा भी हो सकता है, इसके अलावा लिम्फोमा भी हो सकता है, माइलोफाइब्रोसिस भी हो सकती है। तो ये न्यूप्लास्टिक जो है ना डिसऑर्डर हैं वो भी स्प्लीन को एनलार्जमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर स्प्लीनिक रप्चर के अलावा समटाइम्स स्प्लीनिक आर्टरी के एन्यूरिज्म्स भी आपको नज़र देखने में मिलते हैं, और उसकी वजह से, एन्यूरिज्म्स की वजह से एम्बोलाई जा सकते हैं स्प्लीन में, जो जो आके स्प्लीनिक डैमेज करेंगे, या जो है इन्फाक्शन कर सकते हैं वो एम्बोलाई जाके, थ्रोम्बस बने उसमें, एन्यूरिज्म के अंदर थ्रोम्बस बने, वो थ्रोम्बस डिसलॉज हो और स्प्लीन में जाए तो वहाँ स्प्लीनिक इन्फाक्शन हो सकता है। और अगर वो एन्यूरिज्म रप्चर करता है तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो aneurysm involving the splenic artery estimated to be 0.04 to 1% of postmortem examination में ये नज़र आती है। And they are twice the common in women. Women में ज़्यादा aneurysm हैं। All of these are generally single. More than one aneurysm is found in 1/4 of cases. They may be consequences of intra-abdominal sepsis. कहीं पेट में कभी कहीं सेप्सिस हुआ है, पेरिटोनाइटिस हुआ है, तो शायद उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी आप लेटर ऑन एनेरिज्म बन जाता है। या पैंक्रियास की नेक्रोसिस हुई है, उसमें भी because that is in close proximity with the splenic artery, तो पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस जो है वो इसमें, या पैंक्रियाटाइटिस है, that can cause this complication of splenic aneurysm. They are all more likely to be associated with arteriosclerosis, and elderly patients में क्या है, arteriosclerosis है, आर्टिस इस तरह की उनकी वॉल जो है स्क्लीरोज है, जिसकी वजह से एनेरिज्म के चांसेस होते हैं। स्प्लीनिक इन्फेक्शन जैसे हमने देखा occurs in patients with the massively enlarged spleen from myeloproliferative syndrome. माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम जो है उसमें एबनॉर्मल जो है ब्लड सेल्स हैं, वाइट सेल्स या रेड सेल्स, तो उसमें भी मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन हो सकती है। पोर्टल हाइपरटेंशन है, वास्कुलर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस सर्जिकल इंटरवेंशन सच एज, तो आपने रूड ही कर दिया है वेसल को, उसमें भी सच एज स्प्लीन प्रिजर्विंग डिस्टल
पेंक्टेक्टमी की आपने, तो उसमें जो है वेसल्स को आपने ब्लूड किया है, जिससे ऑक्शन हुआ है। तो पैंक्रियाटिक डिजीज, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस और सिकल सेल डिजीज ये कर सकता है। The infarct may be asymptomatic or give rise to left upper quadrant, left shoulder hip pain. CT would be helpful. Treatment is conservative, and splenectomy should be considered only when a septic infarct causes an abscess. आमतौर पर इसमें आप कोशिश करते हैं स्प्लेन को बचाएं, लेकिन अगर आपके वहाँ कोई सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन भी हो गई है, तो फिर आपको वो करना पड़ता है स्प्लीनेक्टमी। एब्सेस स्पेशली अगर कोई हो गया तो एब्सेस में वो सेप्टिसीमिया होगा, पेशेंट की लाइफ एंडेंजर होगी। जैसे हम देखें तो स्प्लीनिक एब्सेसिस भी हो सकती है समटाइम्स, may arise from an infected splenic embolus। तो इन्फेक्टेड एम्बुलस क्या है स्प्लीन में, और इन एसोसिएशन विद टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, ऑस्टियोमाइलिटिस से भी समटाइम्स कोई इन्फेक्टिव जो है थ्रोम्बस अगर जाता है, एम्बुलिज्म जाता है स्प्लीन में, समटाइम्स इवन दी ओटाइटिस मीडिया, peripheral sepsis, ये this can cause the splenic abscess. In general surgical practice, it may be associated with pancreatic necrosis। पैंक्रियास का पैंक्राइटिस हुआ है किसी वक्त, तो पैंक्रियाटाइटिस से जो इन्फेक्शन है कैन एंटर इनटू द स्प्लीन। और इसके अलावा अगर कोई पेटनाइटिस भी हुआ है तो उससे भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंड एब्सेस में रप्चर एंड फॉर्म लेफ्ट सबक्लिनिक एब्सेस। अगर आप देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, तो समटाइम्स आपको लेफ्ट साइड में अंडर द डायफ्राम एक एब्सेस नज़र आती है, तो मे बी दैट एब्सेस इज ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्प्लीनिक एब्सेस और रिजल्ट इन डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस। या फिर अगर वहाँ लोकलाइज नहीं है तो सारी पेरिटोनियम में भी वो पस फैल सकती है, कॉजिंग दी डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस। ट्रीटमेंट क्या है? इन्वॉल्व्स दैट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, जो भी अंडरलाइंग कॉज के जैसे हमने कॉजेज देखी हैं उनको पहले ट्रीट करें। फिर कोशिश ये करते हैं परक्यूटेनियस ड्रेनेज, कि आपको ओपन सर्जरी ना करनी पड़े, आप अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिकल कंट्रोल में स्किन के अंदर से नीडल डालें और उसको सक आउट कर लें उस एब्सेस को। परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ द स्प्लीनिक एब्सेस अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस इज नॉर्मली रिक्वायर्ड। लेकिन अगर जो है सम केसेस में जहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी अवेलेबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है आपके परक्यूटेनियस नीडल से आप ड्रेन कर सकें, फिर आपको जो है स्प्लीनेक्टमी भी करनी पड़ती है। अब स्प्लीनेक्टमी की बातें हो रही हैं, तो जैसे पहले भी बात की, स्प्लीनेक्टमी जो है इस कॉमन सर्जरी ऑफ स्प्लीन एंड उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है स्प्लीनेक्टमी की? ट्रॉमा, स्पेशली ब्लंट ट्रॉमा, जैसे हमने पहले देखा कि ट्रॉमा में उसमें स्प्लीन जो है इंजर होती है, और अगर तो वो उसकी रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रॉमा के अलावा क्या है मोस्ट कॉमन जो क्या चीज़ है वो है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा, ITP। ये मोस्ट कॉमन है। ट्रॉमा के बाद जो बड़ी कॉज है स्प्लीनेक्टमी की वो है ITP, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा, फॉलोड बाय हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। इसके बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, स्क्लेरोसाइटोसिस है, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, और ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियास हैं,
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, तो ये कंडीशन है। इसके अलावा फिर आरबीसी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कुछ कंजेनिटल हैं, कुछ एक्वायर्ड हैं। कंजेनिटल में हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज जिसमें सिकल सेल बहुत कॉमन है, और थैलेसीमिया और एंजाइम डेफिशिएंसीज। और फिर एक्वायर्ड जो है कंडीशन है जिसमें ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, वो एक्वायर्ड है। और पैरासिटिक डिजीज है, तो उसमें भी एक्वायर्ड कंडीशन है। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक बरकरार है, थ्रोम्बोसाइट्स कम है और वजह कोई इसमें स्पेशली मालूम नहीं होती। और लेकिन यह है कि आपको परपरा स्पॉट्स बॉडी में नज़र आते हैं, तो दैट इज द प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा अदर कंडीशन है प्लेटलेट्स की। वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स क्या हैं? ल्यूकीमियाज हैं, लिम्फोमाज हैं, हॉजकिन डिजीज़ है, जिसमें आपको समटाइम्स स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं, माइलोफाइब्रोसिस, क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमियाज, एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसिस्टेमिया और पॉलीसाइथीमिया वगैरह। तो ये बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। इसके अलावा मिसलेनियस को इंडिकेशंस क्या है कि कोई एब्सेस जैसे हमने देखा, तो जिसमें कंट्रोल नहीं हो रही और एस्पिरेट भी आप नहीं कर सकते, और सेप्टिसीमिया का खतरा है, तो उसमें आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। स्टोरेज डिजीजेस, इन्फिल्ट्रेट डिसऑर्डर जैसे गॉचर्स डिजीज़ है, निमेंटिक डिजीज़ है, एमोलाइडोसिस है, फेल्टी सिंड्रोम है। ये जो है ना आपके स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं। फिर फेल्टी सिंड्रोम है, सार्कोइडोसिस है, कुछ हाइड्रेटेड सिस्ट है, या फिर बिनाइन या लिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, उसमें भी आपको बस स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी करनी पड़ती है अगर वो स्प्लीन आपकी इलाज हो जाए। और सिंपल आर्टरी का एन्यूरिज्म अगर है, तो यू हैव टू समटाइम्स डू दिस स्प्लीनेक्टमी। अच्छा, अब ये है कि अगर आपने स्प्लीनेक्टमी प्लान की है, तो कैसे पेशेंट को फ्री ऑफ कैसे प्रिपेयर करेंगे। आप उसको ABCD ऑफ मैनेजमेंट वो तो करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे पेशेंट को, फ्लूइड्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वेस्टिगेशन, सारा कुछ फिटनेस वगैरह देखेंगे। इसके अलावा फिर आप देखना चाहेंगे स्पेशली कोएगुलेशन प्रोफाइल, जो विच शुड बी नियर नॉर्मल। ये आपको इसमें जैसे भी करना पड़े, तो आपको इलेक्टिव सर्जरी में ये करना होता है कि आप नियर नॉर्मल कोएगुलेशन आपकी हो। एंटीबायोटिक्स हैं जैसे मैंने पहले बताया। इलेक्टिव केसेस में, अगर इलेक्टिव केसेस हैं जहाँ आपके पास इतना टाइम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको वैक्सीनेशन दे दें अगेंस्ट न्यूमोकॉकाई, बिकॉज इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव जो है ये ना हो कि न्यूमोकॉकाई अटैक करें या मेनिंगोकॉकाई अटैक करें। ये कैप्सुलेटेड जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, they are specially tackled by the spleen। तो अगर स्प्लीनेक्टमी आपने की है, तो चांसेस होती हैं इन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के, जिनमें न्यूमोकॉकाई, मेनिंगोकॉकाई है, एच इन्फ्लुएंजा है। ये इन तीनों के खिलाफ जो है आप वैक्सीनेशन देना चाहते हैं, ताकि सर्जरी से पहले एक एंटीबॉडीज पेशेंट में बन जाएं और
पोस्ट ऑपरेटिव जो है उसका पीरियड है वो उसमें इन्फेक्शंस का रिस्क ना हो। अब जो टेक्निक्स स्प्लेनेक्टमी की क्या है, एक तो ओपन स्प्लेनेक्टमी है, आपको पता है, एक लेप्रोस्कोपिक है। लेप्रोस्कोपिक इज प्रेफर्ड बिकॉज उसमें आपको जो है मैग्निफिकेशन भी नज़र आती है, कैमरा है, स्मॉल पोर्ट इंसियंस हैं, और रिकवरी भी पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव अच्छी है। जबकि जो इलेक्टिव जो ओपन स्प्लेनेक्टमी है उसमें बहुत बड़ा आपको इंसिजन देना पड़ता है, और फिर जो है प्रोसेस आर डिफ़िकल्ट। तो लेकिन अगर आपका पेशेंट तो स्टेबल है तो फिर आप लेप्रोस्कोपिक में जाएंगे। अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन है और उसमें आप फिर ओपन करना चाहते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं स्प्लेनेक्टमी की। जैसे पहले बात हो गई कि स्ट्रेप्टोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe टाइप बी और मेनिंगोकोकाई के अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन देना चाहते हैं। वैक्सीनेशन अगेंस्ट एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया 2 weeks बिफोर सर्जरी, इट टेक्स 2 weeks, ठीक है। और उसमें बिफोर सर्जरी फॉर द वैक्सीनेशन टू बी इफेक्टिव, जितने एंटीबॉडीज वगैरह बन जाते हैं। इन एमरजेंसी स्प्लेनेक्टमी ट्रॉमा गिव वैक्सीन थर्ड डे। अगर आप एमरजेंसी स्प्लेनेक्टमी की है आपने तो फिर तीसरे दिन आप उसको वैक्सीन दे दें, ताकि बाद में तो कुछ ना कुछ उसकी एंटीबॉडीज बन जाए। और बूस्टर इंजेक्शन एवरी 5 to 6 years regardless of the reason for splenectomy for pneumococci। तो आप 5-6 साल के बाद उसको रिपीट करते रहते हैं न्यूमोकोकाई के लिए। और इन्फ्लुएंजा इम्यूनाइजेशन है वो 8 साल, और जो न्यूमोकोकाई है वो 5 से 6 साल बाद आप रिपीट करते हैं, ठीक है। आप पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जाहिर है ये कॉमन चीज़ें आपको पता है, इसको दोबारा हम देखेंगे। हेमरेज है, हेमाटेमेसिस है, गैस्ट्रिक स्टमक क्रीव है वो डैमेज हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है। और जो डायफ्राम के साथ इन कॉन्टैक्ट है तो लेफ्ट बेजल एटिलेक्टेसिस हो सकता है, प्लूरल एक्यून हो सकता है, गैस्ट्रिक फिस्टुला, पैंक्रियाज है तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, और प्लेटलेट काउंट में राइज अभी क्योंकि वहाँ से एबनॉर्मल प्लेटलेट्स में उसके बाद filtered by the spleen। वो स्प्लीन है तो प्लेटलेट काउंट में राइज, सेप्टिसीमिया हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन हो सकता है, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी सेप्सिस के चांसेस होते हैं अब बच्चों में जो लेस दैन 2 years ऑफ एज, जिनमें अभी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, उनमें ओवरवेलमिंग पोस्ट सेप्सिस ओप्स के चांसेस होते हैं। स्प्लीनिक ट्रॉमा को हम देखते हैं, द कॉमन इंडिकेशंस फॉर स्प्लीनेक्टमी आर ट्रॉमा रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। ये ट्रॉमा सबसे कॉमन है जैसे हमने देखा। और इसके अलावा ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, for example during the mobilization of esophagus, stomach, distal pancreas or spleen, splenic infection of the colon, जो उसके स्प्लीन के जो स्ट्रक्चर हैं, अगर किसी और सर्जरी के दौरान आप उनको मोबिलाइज करते हैं तो समटाइम्स आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। और या फिर कोई स्टोमक का कैंसर है या कोई पैंक्रियाज का कैंसर है तो उसमें फिर आपको उन ऑर्गन्स को रिमूव करते करते साथ जो है स्प्लीन को भी निकालना पड़ता है एंड ब्लॉक विद दी those organs to reduce anemia और thrombocytopenia and spherocytosis। उसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, ITP है और हाइपरस्प्लेनिज्म है।
or in association with the shunt or variceal surgery for portal hypertension के ट्रीटमेंट में समटाइम्स आपको करना पड़ता है। तो ये वही बातें हैं जो अभी हमने बात कर ली है। और बॉचर्स डिजीज़ क्या होती है? दिस इज लिपिड स्टोरेज डिजीज़ characterized by storage of glucocerebrosidase in the reticuloendothelial system and in the spleen. Enormous splenic enlargement may be associated with yellowish brown discoloration of the skin on the hands and face. ये इसमें बॉचर्स डिजीज जो एक लिपिड स्टोरेज डिजीज है, इसमें बहुत बड़ी स्प्लीन एनलार्जमेंट हो सकती है। इसमें और चीज़ें सिम्टम्स स्किन के और हैंड्स के फेस के ऊपर ये होते हैं। येलोइश टिंच ज्यूस में ज़्यादा होता है गॉचर डिजीज़, और गॉचर सेल्स भी आपको बोन मैरो में नज़र आ जाते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। स्प्लीनेक्टमी इज इंडिकेटेड ओनली फॉर सीवियर सिम्टम रिलेटेड टू द स्प्लीनोमेगाली। कोशिश करते हैं अगर उसको सेव कर सकें। सिकल सेल डिजीज़ is a hereditary autosomal recessive hemolytic anemia occurring mainly among those of African origin, जिसमें the hemoglobin A is replaced by the hemoglobin S. So the resulting the hemoglobin S molecule crystallizes when the blood oxygen tension is reduced, thus distorting and elongating the red cells. तो उससे the resulting increased blood viscosity may obstruct the flow of blood in the spleen, और infarcts भी आ सकते हैं spleen में। तो इंसिडेंस भी हमने देख लिया, मोस्ट कॉमन है। स्प्लीनिक इंजरी के आप ग्रेड्स हम देखना चाहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द इंजरी spleen has changed radically over the past decade. So now recognized as an important immunological factor as well as reticuloendothelial filter, although the risk of overwhelming post-splenectomy sepsis is greatest in child, लेकिन adults में भी चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेलमिंग पोस्ट-स्प्लेनेक्टमी सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अडल्ट में भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज मोर। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ब्लंट ट्रॉमा पहले देखा है, इसके अलावा फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, गन शॉट्स वगैरह, उसमें भी समटाइम्स लेसेरेशन हो सकती है या थ्रू एंड थ्रू एक इंजरी हो सकती है स्प्लीन की। It is of interest that in 2% of patients who are undergoing surgery of left upper quadrant of the abdomen, spleen can be injured. Pathophysiology and classification. क्लासिफिकेशन अब देख लेते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 1 में ये है कि सब कैप्सुलर हिमाटोमा करता है और कुछ नहीं है, और ग्रेड 2 में सब सेगमेंटल पेरेन्काइमल इंजरी है, उसमें सिर्फ हिमाटोमा सब कैप्सुलर नहीं बल्कि पेरेन्काइमा की भी इंजरी है सेगमेंट्स में, दैट इज ग्रेड 2 इंजरी। और सेगमेंटल डिवाइटलाइजेशन, और एक पूरे का पूरा सेगमेंट उसको डिवाइटलाइज हो जाए, उसको ब्लड सप्लाई ही ना हो, नेक्रोटिक हो जाए, तो इन्फार्क्ट हो जाए, तो दैट इज ग्रेड 3 इंजरी। ग्रेड 4 में पोलर डिस्ट्रप्शन है, उसका पोल ही डिस्ट्रप्ट हो गया है, और दैट इज ग्रेड 4 इंजरी। और ग्रेड 5 में वैसे ही शटर ही हो गई है स्प्लीन, शटर डिवास्कुलाराइज्ड ऑर्गन है। तो ये इसके ग्रेड्स हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप? हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, सारी जो पहले हमने बात की है, ये देखिए सीटी स्कैन वगैरह। और ट्रीटमेंट क्या है? आपने ABCD ऑफ मैनेजमेंट करना है, और फिर बच्चों में स्पेशली कोशिश करते हैं नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना हो, उसमें जैसे पहले भी बात होगी, नॉन ऑपरेटिव में कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स वगैरह।
और उसको हेमोडायनामिकली स्टेबल करेंगे। और the widely practiced in pediatrics, the criteria for non-operative is in stable patients, और या फिर जो पेशेंट्स हैं जिनमें कोई पेरिटोनिटिस के सिम्टम्स कोई नहीं है, या पेशेंट है जिनको को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है, लेस देन 2 पॉइंट्स ऑफ ब्लड के वो स्टेबल हैं, तो उनमें आप जो है ना नॉन ऑपरेटिव की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉन ऑपरेटिव की इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्प्लीनिक सेल्वेज क्या है? हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा है, अनड्यू डिले एंटिसिपेटेड कि आप समझते हैं कि इसमें बहुत देर लगेगी और स्प्लीन को रिपेयर करते करते जैसे पेशेंट की लाइफ एंडेंजर हो जाएगी, फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। पेशेंट अदर सीवियर, इसके अलावा और भी बहुत सी इंजरीज उसको अगर हैं तो आप स्प्लीनेक्टमी चल जाते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते। और उसमें ग्रेड्स वगैरह को दे के आप जब बोलते हैं तो फिर देखते हैं कि इसको स्प्लीनोरेपी करनी है या स्प्लीनेक्टमी करनी है। कॉम्प्लिकेशंस हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पहले बात हुई, ब्लीडिंग वगैरह है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, नेक्रोसिस है, पैंक्राइटिस है, एब्सेस है, सर्फेनिक। और इसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन में थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी सेप्सिस है जो 1 से 6 हफ्ते के बाद होती है, और डीवीटी भी डेवलप हो सकती है पेशेंट्स को एज लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी। ये हम देखते हैं, ये प्रेजेंटेशन जो है ऐसी है, ये देखते हैं इनके ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज हैं। ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में देखें कैसे पोलर डैमेज है, और ग्रेड 5 में शैटर्ड स्प्लीन है। तो कैप्सुलर टीयर अगर है तो उसको आप हेमोस्टेसिस करके रिपेयर कर देते हैं। और अगर डीपर लेसरेशंस कैन बी कंट्रोल विद हॉरिजॉन्टल अब्जॉर्बेबल मैट्रेस स्विचेस लगा सकते हैं स्प्लीनोरेपी को। मेजर लेसरेशंस इन्वॉल्विंग लेस देन 50% ऑफ द parenchyma and not extended into the hilum can be treated। सेगमेंट को निकाल दें उतने को, जैसे ये लगा रहे हैं इसमें, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मोर एक्सटेंसिव इंजरीज हैं इन्वॉल्विंग द हाइलम और द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्प्लीन, तो फिर आपको स्प्लीनेक्टमी ही करनी पड़ती है। स्प्लीनिक एब्सेस है, इसमें हमने पहले भी देख लिया, इसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, अल्ट्रासाउंड में क्या पिक्चर होगी। माइक्रो एब्सेसिस भी हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में मिलरी ट्यूबरकुलोसिस में ये माइक्रो एब्सेसिस नज़र आ रही हैं, और ये बड़ी एब्सेस भी नज़र आ रही है जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह में। ट्रीटमेंट्स वो हमने देखा कि आप पहले कोशिश करते हैं एस्पिरेट करें, परक्यूटेनियस ड्रेनेज करें, लेकिन जहाँ पे आपकी फैसिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट डू द परक्यूटेनियस, तो वहाँ पे आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है ताकि सेप्टिसीमिया से बचा जाए और सेप्सिस वगैरह ना हो। ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? स्प्लीन में बिनाइन ट्यूमर्स हैं और कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। तो बिनाइन में हेमेंजियोमास, लिम्फेंजियोमास, हेमाटोमास और प्राइमरी सिस्ट और हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह, ये ट्यूमर्स भी पहले हम बात कर चुके हैं। So that finishes with the screen regarding the surgery. Any questions? The mic can be opened, please, for any questions.
थे मतलब क्या होने उत्ते पहुंच गया। इरफान खान मर गया। वो कौन है? लंबा यार सब म्यूट है।